Hello student, welcome to the next video of Business Studies class 11 and we are doing lesson 8, that is sources of business finance. And in the last video we saw about the meaning of these sources of finance, and we also studied about the fixed means what are the uses, why business finance is required. So for fixed capital requirement and for working capital requirement we studied that also. And now in this video we are going to learn about various sources of finance available. Okay, so first of all let's see the chart, this how this classification of sources of fund has been done. So it has been done on the three bases: on the basis of period, on the basis of ownership, and on the basis of generation. So on the basis of period, it may be long term, medium term, or short term. Then on the basis of ownership, it may be owner's fund or borrowed fund. On the basis of generation, it may be internal source or external source. So now let's see the first one, that is on the basis of period. The long-term sources fulfill the financial requirements of an enterprise for a period exceeding 5 years and include sources such as shares and debentures, long-term borrowings, and loans from financial institutions. So whenever any business enterprise they require money for more than 5 years, then they use long-term sources. And what are these long-term sources? They are like your shares and debentures, then your long-term borrowings and loans from financial institution. And student, these all sources we will discuss in detail later in this lesson. Then next is your medium-term sources. So where the funds are required for a period of more than 1 year but less than 5 years. मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर यूज, मीन्स जब भी हमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है 1 साल से ज़्यादा के लिए लेकिन लेस देन 5 ईयर, देन वी यूज़ मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. एंड ये सोर्सेज कहाँ से आते हैं? दीज सोर्सेज आर इंक्लूड बोरिंग्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लीज फाइनेंसिंग एंड लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. सो इन जगहों से हमें ये मीडियम टर्म सोर्सेज वन कैन रेज. जैसे आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ सीसीटीवी कैमरा. सो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो छोटा, उसमें बहुत ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती और वो फंड हम ऑलमोस्ट 5 ईयर के अंदर ही हम दे पाते हैं. सो इट विल कम अंडर मीडियम टर्म सोर्स, मीडियम टर्म फंड. एंड सोर्सेज क्या होंगे उनके? ये सारे सोर्सेज होंगे. देन कम्स योर शॉर्ट टर्म फंड्स. सो दीज आर दोज विच आर रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर. मतलब जब हमें फंड की रिक्वायरमेंट फॉर लेस देन 1 ईयर when funds are required, it comes under your short term. Then the sources are your trade credit, loans from commercial and loans from commercial banks and commercial papers. Then next is your on the basis of ownership or ownership basis. So the sources can be your owner's fund and borrowed fund. Ownership basis मतलब क्या होता है? जब आपका जो means what kind of control one wants. Okay, so here the sources can be classified into owners and borrowed fund. So what is owners fund? Owners funds means funds that are provided by the owners of an enterprise. So नाम से ही पता चल रहा है ना, owners fund मतलब आपका खुद का पैसा. जो भी बिजनेस एंटरप्राइज जो पर्सन है उसका खुद का जो पैसा होता है, that comes under your owners fund. Issue of equity shares and retained earnings are the two important sources from where owners funds can be borrowed. So ये owners fund आपका इधर आप इक्विटी शेयर इशू कर देंगे या फिर आप रिटेन्ड अर्निंग. रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है? जो पैसे आपके खुद के होते हैं और आप बचा के रखते हैं फ्यूचर के लिए. ओके, डिटेल अभी हम पढ़ेंगे बट जस्ट फॉर अ ब्रीफ नॉलेज फॉर यू ऑल कि रिटेन्ड अर्निंग एंड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, these are a kind of owners fund. Then the sources for raising borrowed funds include loans from commercial banks, loans from financial institutions, issue of debentures, public deposits and trade credit. So borrowed fund क्या होते हैं? जब आप क्या पैसे किसी से उधार लेते हो, borrow करते हो, isn't it? ओनर्स फंड जब आपका खुद का पैसा होता है एंड बोरोड फंड जब आप पैसे लेते हो. अब जब आपको पैसे किसी से लेना है आप कहाँ से ले सकते हैं? आप बैंक से ले सकते हो, लोन्स ले सकते हैं आप बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या डिबेंचर इशू कर सकते हैं, और पब्लिक डिपॉजिट एंड ट्रेड क्रेडिट से. दीज आर
the sources of your borrowed funds. And one more thing, student, about borrowed fund, it is said that borrowed funds are provided for a specified period on certain terms and conditions and have to be repaid after the expiry of that period. अरे अब जब आप कैसे किसी से पैसे उधार लोगे तो हमेशा के लिए थोड़ी कोई पैसे देगा, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए देगा ना, ठीक है तुम पैसे ले लो, हमें 1 साल के बाद दे देना, 2 साल के बाद दे देना, तो एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होती हैं। लाइक सपोज अगर हमें घर बनवाना है, हमें लोन लेना है, ठीक है, हाउस लोन लेना है, तो हमारे सारे घर के पेपर्स क्या होते हैं, हम बैंक को देते हैं और फिर हम वहाँ से बैंक हमें लोन इशू करता है। एंड देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड मतलब अब घर का तो अगर हमने पेपर रख दिया तो घर अब तब तक बैंक का हुआ ना जब तक हम पूरा उसका लोन वापस नहीं कर देंगे, रीपे नहीं कर देंगे। ओके, देन अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड बाय द बोरोवर्स ऑन सच फंड। और डेफिनेटली जब हमने बैंक से लोन लिया है तो हम बैंक को जो भी एक फिक्स अमाउंट है वो तो देंगे ही देंगे, उसके साथ हमें कोई क्यों हमें पैसा उधार पे देगा, उसका भी तो कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। उसका प्रॉफिट कैसे होगा, अगर उसने हमें 10,000 दिया और हमने वापस उसको 5 साल बाद 10,000 ही दिया तो उसको कुछ फ़ायदा होगा क्या? सो ऑन सम फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट हैज़ टू बी पेड ऑन दैट बोरोड फंड। क्लियर? Then the last is your source on generation basis. So means what? That from where you can raise the fund. That is from either the source can be internal or external sources. So let's see. Internal sources of funds are those funds that are generated from within the business. So internal source मतलब जो business के अंदर ही आप पैसे raise कर पाते हैं. For example, can generate funds internally by accelerating collection of receivables, डिस्पोजिंग ऑफ सरप्लस इन्वेंट्रीज एंड प्लगिंग बैक इट्स प्रॉफिट। जो भी हमने रिटेन अर्निंग की बात की थी, द सेम इंटरनल सोर्स हुआ ना, वो आपका ही अपना सोर्स है। इंटरनल सोर्स मतलब जो आप खुद का पैसा आप यूज कर सकते हो। क्लियर? देन योर एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड्स, इट इंक्लूड सोर्सेज दैट लाई आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज सप्लायर, लेंडर्स, इन्वेस्टर। कई बार क्या होता है, अगर आपने सपोज रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, ठीक है, तो हमारे सप्लायर्स हैं, तो वो कई बार हमें सामान क्रेडिट पे भी दे देते हैं ना। इफ सपोज आई एम लॉयल, आई पे द अमाउंट ऑन टाइम, सो इट मे हैपन, या सम इंटरेस्ट ले लेंगे वो हमसे, तो ये कैसे फंड हो गए? दीज आर सम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फंड। देन एक्सटर्नल सोर्सेज मे बी कॉस्टली एज कम्पेयर टू दोज रेज थ्रू इंटरनल सोर्सेज, एंड डेफिनेटली जब आप बाहर वालों से पैसे लेंगे तो इट विल बी कॉस्टली एज कम्पेयर टू दोज विच कैन बी रेज थ्रू इंटरनल sources. Some important point about these sources of finance. So a business can raise funds from various sources. ये तो अभी हम लोगों ने देख लिया, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस होते हैं, फिर ओनर्स फंड होता है। मीन्स देयर वेरियस सोर्सेज जहाँ से आप पैसा रेज कर सकते हैं, बिजनेस पर्सन कैन रेज फंड्स फ्रॉम। नाउ ईच ऑफ द सोर्स हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स which must be properly understood so that the best available source of raising funds can be identified. Okay, means जब आप जो भी इतने सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास, लेकिन सारे सोर्सेज के आप पहले एडवांटेजेस देखते हो, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे वहाँ से पैसा लेंगे, तो ये सब चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली पढ़ी जाती हैं, समझी जाती हैं, एंड देन ओनली जो बेस्ट अवेलेबल सोर्स होगा वहाँ से पैसे लेते हैं। क्लियर? मतलब अगर सपोज हमें एक स्कूटी सपोज परचेज करनी है, स्कूटी परचेज करने के लिए आई वांट लोन फ्रॉम एनी बैंक, तो हम क्या करेंगे, हम 4 अलग अलग बैंक के पास जाएंगे ना, देखेंगे उनका इंटरेस्ट रेट क्या है, क्योंकि पैसा जब हम लोन लेंगे तो डेफिनेटली बैंक इज गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट फ्रॉम मी ऑल्सो विद दैट प्रिंसिपल अमाउंट। सो वो इंटरेस्ट का चार्जेस क्या है, अलग अलग बैंक से अलग अलग इंटरेस्ट चार्जेस भी तो होते हैं। या सपोज अगर हमें मेरे पास कोई अवेलेबल सोर्स है जहाँ से अगर हम पैसे, सपोज माई फ्रेंड शी इज़ रेडी टू पे 50,000 टू मी, और हो सकता है कहीं से मेरे पास कल या परसों में 50,000 आ जाएगा, अभी मेरे पास नहीं है 50,000, तो हम जाहिर सी बात है हम अपने उस फ्रेंड से लेंगे जहाँ हमको कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा 2 दिन का, इजंट इट? सो दैट इज़ व्हाट दिस मीन्स, कि जो भी आपके पास अवेलेबल सोर्स होते हैं आप उसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि कौन सा सोर्स अच्छा रहेगा। There is not a single best source of funds for all organization, and this is not that कि जो सोर्स मेरे लिए अच्छा हो वही आपके लिए भी अच्छा हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। ओके, कोई एक सोर्स हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं हो सकता। देन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, पर्पस, कॉस्ट एंड एसोसिएटेड रिस्क, अ चॉइस मे बी मेड अबाउट द सोर्स टू बी यूज्ड। मतलब कैसा क्या सिचुएशन है, क्या कॉस्टिंग है,
क्या रिक्वायरमेंट है, पर्पस आपका क्या है लेने का, रिस्क क्या होगा वहाँ से अगर हम पैसा लेंगे तो उसमें अगर हम सपोज टाइम पे नहीं पे कर पाएंगे। सपोज अगर हमने बैंक और फ्रेंड का एक केस लेते हैं, ठीक है, बैंक ने हमसे बोला कि हम 6% आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और आपको हम पैसे 2 साल के लिए देंगे। फ्रेंड से हमने बात किया, फ्रेंड अच्छा फ्रेंड है, बट फ्रेंड्स में भी चलो फ्रेंड्स ने कहा कि ठीक है हम तुम्हें 6% पे हम भी दे देंगे और तुम 2 साल की जगह चलो 3 साल में हमें पैसे दे देना। ठीक है? तो हम क्या करेंगे? हमें क्या सिचुएशन है, क्या रिस्क है, क्योंकि बैंक को अगर हम इंटरेस्ट नहीं टाइम पे पे करेंगे, तो क्या होगा? बैंक का वो इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हम फ्रेंड के साथ अगर थोड़ा बात कर लें, अरे यार आज नहीं है, कल दे देते हैं, तो इट कैन बी सेटल डाउन। हो सकता है ना आप फ्रेंड के साथ बातचीत से आप तो रिस्क एसोसिएटेड किसके साथ ज़्यादा है? सो ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही अ चॉइस मे बी मेड अबाउट द सोर्स टू बी यूज्ड। So student, this is all about this video, and from next video we are going to study about different sources like your retained earnings, shares, debenture, कैसे पैसा रेज करते हैं, क्या क्या advantages हैं, क्या disadvantages हैं. Okay, so till then thank you, take care, and please do like, share and subscribe the video.